So now we'll move to next topic, that is a National Broadband Mission, NBM. And what is this mission? We will see. And this is a new mission which came only in December 2019. That is why it's important for this exam, because it's a new mission. Okay, National Broadband Mission. It is launched. It has been launched in December 2019 only, and that is why it is important. The government announced NBM, National Broadband Mission, to provide affordable and universal access of broadband for all. Okay. So this NBM is announced to provide the universal access of broadband for all. If I am saying for all, that means for rural areas also. Okay. So the main objective of the NBM, National Broadband Mission, is to provide broadband access to all villages by 2022. So पहले year याद रख लेना आप लोग, that we are going to provide this broadband access to all villages around. There are this जो भारत नेट है उसमें 2.5 लाख विलेज का हमारा टारगेट था. ओके, तो इन सारे विलेजेस को या उसके जो और भी कोई विलेजेस हैं तो उनको सबको 2022 तक हम लोग को ब्रॉडबैंड फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है. सो द एम्बिशियस प्रोजेक्ट will involve down around 30 lakh kilometer route optical fiber cable, increase tower density. इतनी किलोमीटर डिस्टेंस की बेसिकली हमको ऑप्टिकल फाइबर डालनी, केबल डालनी. ओके, and we want to increase our tower density also from 0.42 to 1 per thousand of population by 2024. और लेकिन यहाँ पर जो टावर का बेसिकली जो डिस्टेंस का बेसिकली टारगेट रखा गया है, ओके, जो ऑप्टिकल फाइबर डालनी है, and this tower density that is by 2024, and significantly improve quality of service for mobile and internet. The mission envisages rupees 7 lakh crore investment in next 3 to 4 years. This thing you need to remember. So this mission will provide internet connectivity to 1 lakh villages, which will push our economy to $5 trillion milestone. Because our Modi government has made a target to achieve a $5 trillion economy by 2025, if you remember. इसके ऊपर हम discussion भी होता हमारा. Okay, what are the loopholes in this particular target? इसके ऊपर हमारा discussion भी होगा. Or whether we are going to achieve this target or not, that also we have discussed. Okay, so it will also help. This internet connectivity to all these villages will also help to increase our milestone. This mission is part of National Digital Communication Policy 2018. So in 2018, this policy came, that is National Digital Communication Policy. And this National Broadband Mission is a part of this policy only. And what is this policy, we will see. Because remember one thing, that in prelim exam, UPSC prelim exam, questions also come for 2 or 3 years back current affair. तो 2018 भी पॉलिसी यदि कोई आई थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल. ओके, इट्स नॉट दैट कि ये 2018 के पॉलिसी आई थी उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा. इनफैक्ट आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. देयर आर 4 or 5 क्वेश्चंस, वी आर 2 or 3 बैक्स करंट अफेयर. 2 साल पुराने करंट अफेयर से क्वेश्चन भी आ रहे हैं. सो रिमेंबर दैट दिस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन इज द पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी ओनली. ओके, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए मिशन लॉन्च किया है. दैट इज व्हाई we will read about this policy, National Digital Communication Policy. So it is India's a transition to a digital empowered economy and society. So जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, इसका मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन है वो बढ़े पहले से. तो ये बेसिकली इस पॉलिसी से हम लोग बेसिकली करना चाह रहे हैं. सो इंडिया's ट्रांजिशन टू डिजिटल एम्पावर्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड ब्रॉडबैंड फॉर ऑल. तो ये जो ये इसमें ये फीचर था ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, इसीलिए हमने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन स्टार्ट किया है ताकि सबको ब्रॉडबैंड मिले जो हमारी इकोनॉमी वो डिजिटल इकोनॉमी बने. ओके, वी आल्सो वांट टू क्रिएट 4 million additional jobs in the digital communication sector. Okay, we also want to create 4 million additional jobs in the digital communication sector. जितनी जॉब हम प्रोवाइड करना चाहते हैं
using this policy. And also enhancing the contribution of the digital communication sector to 8% of India's GDP from 6% in 2017. So we also want to increase the contribution of the digital communication sector, including mobile sector, including internet services. तो इसका जो जीडीपी में शेयर होना चाहिए, हम चाहते हैं कि इसका जीडीपी में जो शेयर होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्टर का, that should be 8%. And the existing share of this kind of this sector is 6% in 2017. Okay. And also we want to propel India to the top 50 nations in the ICT Development Index of ITU. इसको basically ITU launch करता है, ICT Development Index को. This is Information Communication Technology Development Index. Okay. And इसमें इंडिया की रैंक कभी 2017 में 134 थी और इंडिया चाहता है कि हमारी रैंक 50 के अंदर आ जाए. Okay. We should be top and we should be under this top 50 nations in this ICT Development Index. तो आप लोगों को होमवर्क नोट कर लो आप लोग, ये ICT Development Index आपको बेसिकली पढ़ना है. ओके, ICT Development Index. तो ये कौन पब्लिश करता है, क्या इसके इंडिकेटर्स है और इंडिया इसमें रिसेंटली अभी कौन सी इंडेक्स रिलीज की गई है और इंडिया की इसमें रैंक क्या थी एक्सेट्रा. ओके, सो ये पढ़ के आना आप लोग ICT Development Index. And apart from that, another objective is that ensuring digital sovereignty. ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है, what is the meaning of ensuring digital sovereignty? Yes, anybody can tell what is digital sovereignty with examples? Examples मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझा सके, बता सके. Yes, anything, whatever you want, whatever you know. सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? Sovereignty is freedom from interference in internal and external matters of a country. What could be digital sovereignty? In which context we can say? So we have control over the data over our citizen, and no other country is accessing it. Right, ये भी हो सकता है. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, जो भी हम इंटरनेट पे जो वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं, हम लोग मान लो ये कितनी एक्सेस कर लिया, ओके, या कुछ डाउनलोड कर लिया या कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड कर लिए, तो ये बेसिकली जो भी डेटा इंटरनेट पे डालते हैं, जाता कहाँ पर है? ऑब्वियसली एयर पे तो जाकर सेव होता है, कहीं पर जाकर सेव होता है और इसको हम एक्सेस करते हैं. whether we are downloading the music, whether downloading movies, हम YouTube पे तुरंत से देख लेते हैं वीडियोस वगैरह. ऑब्वियसली ये कहाँ पर डेटा सेव होता है? इस डेटा को सेव करने के लिए बहुत बड़े-बड़े डेटा सर्वर रूम बनाए जाते हैं, तो जिसमें बहुत बड़ी हार्ड डिस्क रखी जाती है. डेटा सर्वर रूम बनाएगा, उसमें बहुत बड़ी हार्ड डिस्क रखी जाती है. उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल करना पड़ता है. इनफैक्ट वहाँ पर एसी वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि, बिकॉज वो काफी लगातार चलता रहता है, फ्लो चलते रहते हैं डाटा सर्वर्स, तो काफी हीट हो जाते हैं, तो उनको इसलिए कंट्रोल करने के लिए उनको टेम्परेचर भी डाउन रखना पड़ता है उस तरह के सर्वर रूम्स. तो जितने भी जो डेटा सर्वर रूम्स है ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में, ओके, तो हमें क्या चाहिए कि हम हमारी कंट्री में भी ऐसे डेटा सर्वर रूम बनाएं, ताकि और कुछ ऐसे डेटा सर्वर रूम बनाएं जिसको बेसिकली सिर्फ हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए या स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए यूज करें, या गवर्नमेंट ही उसको यूज कर रही है डेटा सर्वर, ओके, ताकि हमको डिपेंडेंट ना रहना पड़े दूसरी कंट्रीज डेटा सर्वर के ऊपर. या तो ये डेटा सर्वर है वो यूएसए में मिलेंगे आप लोगों को, या कुछ और डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेंगे, बट नॉट इन इंडिया. ओके, एंड दैट इज व्हाई एक तो ये हो गया जिसकी डेटा सर्वर बनाया जाए हमारे कंट्रीज में. उसके अलावा आप ये समझ सकते हैं जैसे कि मान लो एथिकल हैकिंग नाम की चीज होती है, दैट जो गवर्नमेंट के पास जो हैकर्स होते हैं जो बेसिकली सिर्फ ये कंट्रोल करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को या जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उसको कोई हैक ना करे, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. ओके, गवर्नमेंट को बेसिकली किसी से बात भी करनी है, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. ओके, कोई भी कम्युनिकेशन है या कोई भी डेटा है हमारा, वो सारा अवेलेबल रहता है. ओके, पब्लिकली, नॉट ओनली पब्लिकली, जो इनफैक्ट इंट्रा जो कम्युनिकेशन होता है वो भी इसमें भी इंटरनेट का यूज होता है. दैट इज व्हाई इट्स वेरी रिस्की नाउडेज. उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द रशियन एथिकल हैकिंग कंपनीज. ओके, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है. आई थिंक Kaspersky is a company which is helping the Indian government in ethical hacking. Okay, so why not we create hackers in our own country, ethical hackers in our own country. तो ये सारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम या इसके अलावा आप सोचो कि ये जो मान लो
मान लो प्राइम मिनिस्टर को मोबाइल चाहिए एक अच्छी कंपनी का, ओके, एंड ही इज परचेजिंग फॉर, फर्ज करो सैमसंग या आईफोन परचेज कर रहे हैं वो, ऑब्वियसली और क्या परचेज करेंगे, ओके। तो इस तरह के मोबाइल परचेज करते हैं, बट इंडिया में ऐसा कोई मोबाइल कंपनी नहीं है जो कि टोटली जिसका सारा सॉफ्टवेयर और सब कुछ इंडिजिनस हो। इनफैक्ट इवन इफ वी आर प्रोड्यूसिंग मोबाइल्स इन अवर कंट्री, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट रिलाई ऑन माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स इनफैक्ट इट्स नॉट टोटली इंडियन कंपनी, जो भी इसका जो बेसिक चिप्स वगैरह वो सारे चाइना से बन के आती है। एंड इवन इफ वी आर कुड प्रोड्यूस मोबाइल फोन इन अवर ओन कंट्री, देन आल्सो दिस एंड्रॉइड वर्जन, तो वो कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेंगे, तो विंडोज इंस्टॉल करेंगे मोबाइल में या एंड्रॉइड इंस्टॉल करेंगे और मे भी कुछ एप्पल का मैक इंस्टॉल कर लो, ओके, बट दैट ऑल these सॉफ्टवेयर्स आर फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज ओनली, ओके। तो विंडो भी डेटा लीक कर सकता है, एंड्रॉइड भी, गूगल भी, इनफैक्ट यूएसए कंपनी भी डेटा लीक कर सकता है। So that is why it's very much needed that we create this digital infrastructure in our own country. So for that we can use this digital sovereignty. और ये हो सकता है मे भी आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ओके, फुल क्वेश्चन आ जाए जीएस में या मे भी एस से आ जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी। सो ये सारे एग्जांपल्स आपको उसमें लिखने हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, या कुछ और भी एग्जांपल आप कलेक्ट करो, ओके। सो दीज ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड बाय 2022 तक बेसिकली आपको ये ऑब्जेक्टिव सारे अचीव करने हैं जो ये पॉलिसी में बेसिकली बताए गए। सो अदर फीचर्स ऑफ नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2022, अदर फीचर्स क्या है? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, at 50 Mbps, 50 megabytes per second to every citizen. Just think, okay, that every citizen would get a speed of 50 Mbps. तो इस तरह का ब्रॉडबैंड हमको प्रोवाइड करना है। And to provide 1 gigabyte per second connected to all ग्राम पंचायत, okay, तो ग्राम पंचायत को बेसिकली हमने 1 gigabyte per second की स्पीड से बेसिकली इनको इंटरनेट देना by 2020. So this is the first target of this policy. एंड इसके अलावा 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक का हमें देना है कनेक्शन ग्राम पंचायत को बाय 2022। और ग्राम पंचायत से कनेक्शन हम क्यों देना चाह रहे हैं? बिकॉज अभी आजकल क्या होता है कि यदि आप लोगों ने कभी पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में आप जाकर देखा हो आप लोगों ने, सो देयर आर कॉन्फ्रेंस हॉल्स, ओके, इन दिस ग्राम पंचायत समिति। इसमें क्या होता है, ये स्टेट चीफ मिनिस्टर होता है वो सारी पंचायत के साथ एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, ओके। एंड तो उसमें क्या होता है कि जो पंचायत समिति में या ग्राम पंचायत से बैठ के इनफैक्ट एक ऑनलाइन पूरी लोगों से भी बात कर सकते हैं, ओके, जैसे मोदी जी सबसे टॉक करते हैं, ओके, कभी किसी से स्कीम के ऊपर लेकर किसी गांव की महिलाओं से बात कर लेते हैं। सो हाउ इट कुड बी पॉसिबल? थ्रू ऑब्वियसली दिस इंटरनेट कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। सो ऑब्वियसली इट इज एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस, ओके। सो इंश्योर कनेक्टिविटी टू ऑल अनकवर्ड एरियाज, attract investments of US dollar of about $100 billion in the digital communication sector. So these are basically targets. And apart from that, train 1 million manpower for building new age skill. Okay. So itne around 10 lakh manpower को हमको basically train करना है to with this digital infrastructure. Okay. And to expand IoT ecosystem, IoT stands for Internet of Things, to 5 billion connected devices, okay। तो 5 billion devices को बेसिकली हम लोग Internet of Things प्रोवाइड करना है। Internet of Things हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जो भी कन्वेंशनल जो थिंग्स थे, whether it could be AC, whether it could be fan, okay, whether it could be street lights, whether it could be these conventional bulbs, okay, all these things should be connected with the internet, whether it's a traffic lights, whether it is this toll booth barriers, okay, everything need to be connected with the internet, okay, that is basically Internet of Things. So establish a data protection regime. यदि आप लोगों को याद हो तो डेटा प्रोटेक्शन एक बिल भी आया था, and there was a committee also to have this data protection, okay, that committee put a recommendations, okay, ये सब आपको न्यूज़पेपर में काफी कवर हुआ सब चीजें। सो इसके ऊपर बेसिकली एक डेटा प्रोटेक्शन एक रिजाइन बनाना ताकि लोगों को डेटा प्रोटेक्शन रहे बेसिकली, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। एंड टू सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, जो हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी हम लोगों ने बेसिकली सिक्योर करना। जैसे कि हम लोग फर्स्ट करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और डिजिटल सॉवरेनिटी का, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को दिमाग में आया।
कि जैसे हम लोग जो पहले जो ये जो डेबिट कार्ड थी, इसका एग्जांपल नोट कर लो आप लोग। ये जो डेबिट कार्ड थे, जो पहले हम लोग यूज करते थे, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड यूज करते थे। वी वर ओवर डिपेंडेंट ऑन दिस बेसिकली कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। बट अभी हमारे पास रूपे, हम लोग खुद का एक डेबिट कार्ड बनाया, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ दैट वी आर मेकिंग दिस इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रूपे कार्ड इज द बेस्ट एग्जांपल कि कैसे हम लोग डिजिटल सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं। To secure digital communication infrastructure and services, to establish a national digital grid by creating a national fiber authority. So, जो national digital grid बना रहे हैं हम लोग by installing the fiber wires. Okay. So for that we are also creating a national fiber authority, which will control this fiber technology. And fiber wire के ऊपर जैसे 4 या 5 साल पहले एकदम से जब ये भारत नेट मिशन लॉन्च हुआ तो ये बात चली थी कि फाइबर वायर डाली जाएगी। इनफैक्ट भारत नेट से पहले भी ये मिशन था, इसका नाम चेंज करके भारत नेट रखा गया था, बात करेंगे हम लोग। ओके, तो उस टाइम ये जो 11-12 के आसपास एक फाइबर वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हुआ था, फाइबर वायर, और ये कैसे इसलिए काम करते हैं इसके बारे में बात कर भी चुके हैं आई थिंक हम क्लास में। ओके, ऑफलाइन क्लासेस में इसको बात कर चुके हैं। फाइबर वायर में बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, जनरली जो बेसिकली डेटा ट्रांसमिट होता था पहले कन्वेंशनली, दैट वाज इन फॉर्म ऑफ द करंट। करंट ज्यादातर वायर से, जैसे ये टेलीफोन वायर से उस तरह से करंट बहता था, उससे बेसिकली जब वायरलेस टेक्नोलॉजी आई उसके बाद। लेकिन जो फाइबर टेक्नोलॉजी है उसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ करंट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, उसमें लाइट बेसिकली मूव करती है, और लाइट जो ये मूव करती है दैट ट्रांसमिट्स द डेटा। दैट इज, और जो लाइट की स्पीड है ऑब्वियसली ज्यादा है, वो इनफैक्ट लाइट की स्पीड हाईएस्ट है, जितने भी बेसिकली स्पीड हम दे सकते हैं किसी की, तो लाइट स्पीड है, लाइट की स्पीड ज्यादा है तो इसकी स्पीड मिली नहीं है हम लोगों को। सो लाइट की स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब डेटा ट्रांसमिट ज्यादा होगा, तो इंटरनेट स्पीड हम लोगों को ज्यादा मिल सकती है। ओके, एंड दिस जो ऑप्टिकल फाइबर जो वायर होती है, इसके अंदर लाइट ट्रांसमिट होती है, एंड जो ऑप्टिकल फाइबर की वायर इसकी कोटिंग इस तरह से होती है कि जो लाइट ट्रांसमिट होती है दैट मेक्स ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग क्लास में समझ चुके हैं, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जो भी लाइट होती है अंदर से रिफ्लेक्ट होती रहती है, and then it transmits the data. Okay, so this is a fiber technology, and creating a collaborative institutional mechanism between center, states, and local bodies for common rights of way. Okay, so we want to make a coordinational effects of the center, state, and local bodies, and again it is a example of cooperative federalism in 3-tier structure of India. पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिर्फ सेंटर स्टेट्स की बात होती थी, अभी लेकिन आजकल यदि कुछ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कुछ आता है, ऑब्वियसली सेंटर स्टेट्स को तो हम कंसर्न करना ही है, साथ में यदि आप लोग लोकल बॉडीज को भी इसमें इंक्लूड कर लो तो डेफिनेटली your answer will be get enriched. Okay, so obviously लोकल बॉडीज भी आजकल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आते हैं, 3-tier स्ट्रक्चर। सो ये तीनों बॉडीज मिलके काम कर रही हैं, दैट इज व्हाई इट कैन बी एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.